then the next card is the star card. स्टार कार्ड ये होता है हमारा 17 नंबर का कार्ड। देखिए स्टार कार्ड को देखिए, इसकी बहुत ही टेम्परेंस जैसी एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल, कामिंग और हार्मोनियस एनर्जी है इसकी। इतने डैमेज के बाद ये एक पीरियड ऑफ हीलिंग कहलाता है, ये पीरियड ऑफ काम एंड हीलिंग। First of all, it is a very powerful card for success. It is a straight yes or a success card. And not just ordinary success, but extraordinary success. That means extraordinary profits, extraordinary fame, extraordinary stardom. Because it is the star, it is always shining, and it is up in the sky, which everybody can see the star shining in the sky. ठीक है, तो इसकी जो मैसेजिंग है, इसकी जो एनर्जी है, वो आपकी अपर वर्ल्ड से आती है। नेक्स्ट थिंग, ये कार्ड आपके लिए गुड हेल्थ और रिवाइवल इन स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। वेरी गुड हेल्थ, रिवाइवल इन स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। रिलेशनशिप्स में ये डीप अंडरस्टैंडिंग और लव दिखाता है। इमोशनली आप लोग आपस में बहुत कंफर्टेबल हैं। मैम ये जो सॉरी, ये मैम जो ये दो लाइक जग्स हैं, तो वन इज आई मीन ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा। मेरा मैंने अभी सिंबल्स किए हैं क्या? मैंने ओके किए, यू नो माय वे राइट, हैव पेशेंस। ओके या, सो स्टार्स ऑफ गुड फॉर्च्यून शाइनिंग ऑन द टास्क, it is also known as the good fortune card. Okay, so it means that whatever question you have asked, it is going to be blessed by the Almighty. And the stars of good fortune are shining on your work, on your studies, on your relationship, on your health, whatever the question. And it says that if you do sustained effort, third point is very important, sustained effort. If you do sustained effort, means firstly effort is required. Secondly, sustained word is very important when the star card comes. Sustained means you have to do effort day after day after day. Consistency is very important. लगातार प्रयत्नशील रहना। कार्ड का टोटल 8 पे आता है। सैटर्न से वो है, ये इन्फ्लुएंस है कार्ड, और सैटर्न जैसे आपको निरंतर कर्म करने के लिए इंस्पायर करता है कि डेली बेसिस पे आपने काम करना है, then you will get sure shot success, but sustained effort has to be there, so don't give up in the middle. Okay, that is the message. You want to clear the civil services, you have to study every day for a finite number of hours. You have to study, no skipping, no distractions, nothing, because you have seen a dream which is a difficult dream. तो ये जब कार्ड आता है, इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है या डिफिकल्ट ड्रीम एसोसिएटेड होती है। डिफिकल्ट से मतलब इट विल रिक्वायर ऑल योर एफर्ट टू अचीव इट। इस कार्ड के अंदर आप एक देखोगे पर्सन सिटिंग, ही इज नीलिंग डाउन ऑन वन नी, and what he is doing is that he is dipping into the pond of his ideas and inspiration. The big pond is the pond of ideas and inspiration, because he has some goal in mind which is far away. Stars भी far away होते हैं, तो हमारे कभी कभी गोल्स भी ऐसे होते हैं ना, थोड़े से फार फेच्ड, जो हमें इजीली नहीं मिल सकते।
ये वो वाले गोल्स के बारे में बताता है आपको कि वो भी रीचेबल है, इवन द स्टार्स आर रीचेबल। तो वो इसकी इंस्पिरेशन है, और उससे वो क्या कर रहा है, उससे वो अपनी डेली लाइफ का एफर्ट दिखा रहा है। तो फ्रॉम वन पिक्चर इज इन द universal inspiration, and the other one he's using to irrigate the dry land behind him. What is his vision? To create a garden in a desert. That's what he's planning to do. So he's kneeling down, he's taking water from the large oasis. ये oasis है जो desert के बीच में आपको मिलते हैं ना, oasis, पानी के ponds मिलते हैं natural, ये वो है। उसके किनारे ये उसमें से निकाल रहा है अपनी इंस्पिरेशन, या उसमें से निकाल रहा है ये अपने आइडियाज और एफर्ट, और उसके थ्रू ये अपने पीछे का लैंड को इरिगेट कर रहा है। अकेला है, ध्यान रखिए, देयर इज नोबडी अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स ऑन हिज स्काई, ऑन हिज हेड। So sometimes what this card tells you is that if you want to shine and be famous or do something which is very far fetched, then in that case sometimes you have to work alone, and you might face some physical discomfort also. But if you are determined to do your work on a daily basis, then you will achieve your dream. We see the Saptarishi on the top. That means blessings by, you can count them as 7 planets also, or you can take them as Saptarishi. Okay. All the planets are blessing. Meaning, जब वो कहते हैं ना कि जब आप सोच लो एक चीज के लिए, जब आप एफर्ट करते हो, तो सारी कायनात जुट जाती है आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। ये उस टाइप का मैसेज है कि अपने आप ही आप देखोगे आपको सपोर्ट मिलता चला जाएगा, ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएंगी। ओके। और पीछे आपकी ड्रीम जरूर फुलफिल होगी। इसमें भी आप साइंस देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू विल सी अ ट्री हियर विच इज फ्लावरिंग। दैट मीन्स हिज एफर्ट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ब्रिंगिंग हार्वेस्ट। ऑलरेडी ही इज गेटिंग द रिवॉर्ड्स फॉर हिज हार्ड वर्क। आपको बर्ड्स दिखेंगी, बर्ड्स सिंग कर रही हैं, ट्रीज फ्लावर कर रहे हैं। ये सब रेगिस्तान में हो रहा है। तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते अपने एफर्ट से? ह्यूमन एफर्ट के बारे में यहाँ पर ह्यूमन पैशन को होमेज दी गई है इस कार्ड के अंदर। और ये हर तरीके से शांति, सुख और समृद्धि लेकर आता है आपके जीवन में। शांति बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, पीस एंड हीलिंग। Then we come to another celestial body, which is the moon. After the star, we see the moon. What is the moon? See, the moon is indicating our emotions. As a planet, the moon indicates our emotions. So when the moon card comes, first of all, you have to see this as a emotional period of your life, or there is some deeply emotional situation that you have to face. Okay. It is showing you mental stress and anxiety. इसके बाद भी एक सप्लीमेंट्री कार्ड निकाल लीजिए, अच्छा रहता है हमेशा। क्योंकि मून की जो एनर्जी होती है वो दिखाता है किसी का इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड पीरियड।
तो जब मून कार्ड आता है, देन यू विल फेस अ सिचुएशन विच इज गोइंग टू इमोशनली कंफ्यूज यू, एंड यू विल नॉट नो हु टू ट्रस्ट एंड हु नॉट टू ट्रस्ट। इसमें ट्रस्ट का इशू एक इम्पोर्टेंट होता है। तो एडवाइस यही दी जाती है कि लोगों की बातों में ना आए। जब आपका मून कार्ड आता है तो लोगों की बातों में ना आए, बल्कि अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करें। आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपकी जो अपनी गट फीलिंग है, आपका जो अपना दिल बोलता है, उसको ट्रस्ट करें। इसमें आप अपनी ड्रीम्स में जो सिग्नल्स आते हैं आपके, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और आप एंजल मैसेजेस या टैरो मैसेजेस को भी फुल्ली बिलीव कर सकते हैं इस समय, क्योंकि आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपकी सबकॉन्शियस से आएंगे। तो आपने उनको रीड करने की कोशिश करनी है। It is not an easy card. When the moon card comes, you have to be a little alert to understand its deeper meaning. Okay, it's not a very direct card. लेकिन इसके आसपास के कार्ड्स हमेशा देखिए। अगर इसके आसपास के कार्ड, सराउंडिंग कार्ड्स जो हैं, वो भी कप्स के आते हैं या वॉन्ड्स के आते हैं, तो सिचुएशन जो है वो ज्यादा पैशनेट या ज्यादा इमोशनल होगी। Person will be quite unstable in their emotions at that time if you are having more of cups or wands. इसका मतलब वो इमोशनल होके भी कोई एक्सट्रीम एक्शन भी ले सकते हैं। इसमें लेकिन एंजाइटी आती है, वरी आती है, स्ट्रेस आता है, और ओवर थिंकिंग अबाउट अ एस्पेक्ट। ओवर थिंकिंग बहुत आता है। इसकी इमेजेस पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि देर इज अ वाटर बॉडी और उसके अंदर से एक स्कॉर्पियन बाहर आ रहा है, बिच्छू। शोर पे आपको एक डॉग दिखेगा, ब्राउन कलर, दिस ऑरेंज कलर ब्राउन कलर इज अ डॉग, एंड द अदर वन, ये जो येलोइश कलर का है, ये एक वुल्फ है। ठीक है, तो डॉग और वुल्फ के बीच में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर आपको एक लंबी सी यहाँ पर रोड दिखेगी। ये देखिए, यहाँ पर एक रोड दिख रही है, पतली सी, उन दोनों के बीच में जाती हुई, जो आपको दो गेट्स के बियॉन्ड लेके जा रही है। और ऊपर आपको एक सन दिखेगा, सन कह लीजिए, मून कह लीजिए। बेसिकली इट इज अ मून, बिकॉज यू हैव टू लुक एट दिस क्रेसेंट मून। ठीक है, पहले क्रेसेंट मून देखिए, फिर हाफ मून देखिए, और फिर ये हाफ मून धीरे धीरे कन्वर्ट होकर सन में बदल गया। ठीक है, फाइनली सन है, क्योंकि सन की रेज निकल रही है। सबसे छोटा वाला जो क्रेसेंट मून होता है, आ गया, वो क्या इंडिकेट करता है? प्रीवियसली भी हमने कार्ड्स में देखा है। मैम येलो कलर एनर्जी का होता है। नहीं, कलर नहीं। जब आपको बिल्कुल पतला सा चांद, चंद्रमा नजर आता है, वो क्या है? तो चांद बहुत पतला या बहुत छोटा होता है, जैसे इस केस में आपको दिख रहा है, पहले बहुत ज्यादा छोटा है, फिर हाफ मून बना, फिर फुल मून बना। मैम बहुत सेंसिटिव। सेंसिटिविटी और ऐसे इमोशंस जो आपके अपने आप से सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, मन की बेचैनी या उथल पुथल को इंडिकेट करते हैं। अलका जी, कौन से कार्ड में देखा था हमने इतना पतला सा एक मून लास्ट? कोई भी एक कार्ड, दो तीन कार्ड्स में आ चुका है, माइनर अरकाना में। कार्ड्स को देखा करो ध्यान से, उसकी इमेजेस को अब्सॉर्ब किया करो। मैम हाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स का है। एट ऑफ कप्स, वेरी गुड। एट ऑफ कप्स में देखने को मिला, और हमारे को टू ऑफ स्वॉर्ड्स में भी देखने को मिला था, जब वो पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि क्या करना चाहिए। तो जहां पर भी आपके मन के अंदर बेचैनी होती है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, आपका मन बहुत बेचैन रहता है, और आप अंदर ही अंदर टर्मोइल में रहते हो, तो ये मून की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर ये कहता है
कि हम सबकी लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली मौके आते रहते हैं जब हमारे अपने इमोशंस बहुत अप एंड डाउन में रहते हैं। उस टाइम पर या हम लोग किसी की वजह से इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, उस चीज की वजह से या उस पर्सन की वजह से हम हो तो जाते हैं इमोशनली डिस्टर्ब। अब उस टाइम पर ये डॉग और वुल्फ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बिकॉज वुल्फ जो है ये आपको और ज्यादा गहराई या और ज्यादा अंधेरे में लेके जाता है। प्लीज रिमेंबर, वुल्फ इज अ एनिमल ऑफ द नाइट। रात को जब वो हू करता है तो उसमें डर उत्पन्न होता है। वो आपको रात की डार्कनेस, इट्स शोइंग यू द डार्क साइड ऑफ लाइफ, and dog is taking you towards the light and the bright side. It is alerting you, सावधान रहो, सावधान रहो। सिचुएशन की इमोशनैलिटी में या सिचुएशन की डार्कनेस में ड्राउन मत कर जाओ। अगर तुम ड्राउन कर गए ना, अगर तुमने अपनी नेगेटिव थिंकिंग या अगर तुम बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके सेंसिटिव हो, तो तुम अपने इमोशनल ओशन में डाउन कर जाओगे। और तुम ड्राउन कर जाओगे तो कौन बैठा है ये तुम्हें खाने के लिए, यहाँ पर ये स्कॉर्पियो बैठा हुआ है, ये तो तुम्हें ऐसे लेके जाएगा नीचे, फिर तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। सो दैट मीन्स that whenever an emotionally difficult situation is coming in your life, pull yourself out of it quickly. If you allow yourself to be sad or depressed for a long time, then the darker forces will take over. And then you can have problems like anxiety, depression, suicidal thoughts, etc. फिर सिचुएशन वर्सन हो जाती है। तो ठीक टाइम पे अपने आप को बाहर निकाल लो, जैसे ही आपकी सिचुएशन जो है ज्यादा इंटेंस होती है, बाहर आ जाओ। और इसीलिए ये मून की जर्नी दिखाई है, फ्रॉम अ पतला सा मून, क्रेसेंट मून, टू अ हाफ मून, टू अ फाइनली अ फुल मून। फुल मून इसको कह लीजिए या इसको सन कह लीजिए। फुल मून इज एक्चुअली इक्वल टू द सन बिकॉज बोथ आर ब्रिलियंट। एक रात को है, एक दिन में है, दैट्स ऑल राइट, वो तो नेचुरल साइकिल है, लेकिन दोनों ब्रिलियंट है ना, दोनों ही आपको राह दिखाते हैं। तो आप फुल मून बनने की कोशिश कीजिए जिनका अपने ऊपर फुल इमोशनल कंट्रोल होता है। तो आप इस रास्ते से बाहर आ जाओगे। इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी बिकॉज रास्ता देखिए कितना पतला सा दिखाया गया है। तो जरूर इजी नहीं होता कहीं भी इमोशनली डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना, बट इफ यू आर करेजियस यू विल कम आउट एंड देन यू विल क्रॉस ओवर टू द अदर साइड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपकी लाइफ में आपको क्वेश्चन भी करता है कि डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली। okay, when this card comes means do not trust blindly, do not फ्लो इन इमोशंस कि नहीं ये तो मेरा अच्छा ही चाहता है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है वो उस टाइम अच्छा चाह रहा हो आपका। तो अपनी इंस्टिंक्ट की सुनिए। क्लियर? फिर आते हैं हम सन कार्ड के ऊपर। मैडम थर्ड इसमें जो जो, हमारा, सॉरी, हाँ ये जी, ट्विन टॉवर्स भी आ रहे हैं पीछे, ये कॉन्फ्लिक्ट को ही मैं दिखा ऑलरेडी रहे हैं तो। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा सन कार्ड देखेंगे अगली बारी, नेक्स्ट वाले कार्ड के अंदर सन कार्ड को देखिए। अच्छा। सन कार्ड, सन कार्ड के अंदर ये एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एनर्जी होती है टैरो की, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती है, इसमें कोई डार्कनेस या ग्रीनेस नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट प्योर सक्सेस, प्योर जॉय, प्योर सेलिब्रेशन। ये ऐसा सन है जिसपे कोई क्लाउड नहीं है, कोई शैडो नहीं है ना, पूरा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ हेल्दी सन है ये। तो ये आपको क्या क्या बताता है? फर्स्टली इट शोज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल या मनी या किसी भी टाइप का बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन में ये आपको सक्सेस और विक्ट्री दिखाता है। ये आपको फेम और पॉपुलैरिटी दिखाता है, यानी कि आप किसी वजह से पॉपुलर हो जाओगे या आपकी तारीफ की जाएगी या बहुत लोग जो हैं आपकी किसी बात को हाईलाइट करेंगे। सो यू विल बी लाइक अ स्टार, ओके, यू विल बी अ लिटिल स्टार।
then there is this little child here, okay, sitting on the horse. Child जो है वो ये again it is a child birth related card, fertility के लिए, child birth के लिए, या किसी भी टाइप के कंसेप्शन के क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा मैसेज होता है ये। और हॉर्स जो है इसमें वो फास्ट स्पीड को इंडिकेट करता है कि न्यूज आपके पास जल्दी ही आने वाली है, ठीक है। हॉर्स इज शोइंग फास्ट स्पीड, so if it is like will I get a promotion, then also it is a yes, and it is a early timing card that yes, you will get it soon. So horse is indicating that your wish fulfillment will be quite fast. Red color here indicates power and official praise, meaning either you will be getting into a position of power, more assignments will come to you, or you might get a promotion, or maybe the bosses are going to praise you. कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत सडनली बहुत ब्राइट हो जाएगी और आप लाइमलाइट में आ जाओगे। Recovery after an illness, this is one of the primary cards for recovery, even if the illness has been going on for some time. Like people, you know, sometimes people get demoralized, ये तो बहुत टाइम से हम ऐसे ही चल रहे हैं, बट सन कार्ड अगर आ जाता है आपकी रीडिंग में तो यू कैन एक्चुअली प्रॉमिस देम कि नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। देखिए जल्दी हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, सराउंडिंग कार्ड्स बताएंगे हेल्थ में, लेकिन ये एक कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन जो है वो बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं। फिर इसमें ये आपको सन के साथ ना कुछ सनफ्लावर्स भी दिखेंगे, देख रहे हो आप ये सनफ्लावर्स, ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, तो सनफ्लावर की क्या खासियत होती है, क्या करता है सनफ्लावर? एनीथिंग, एनी स्ट्राइकिंग क्वालिटी अबाउट देम? जब तक सन रहता है तब तक वो खिला रहता है। वेरी गुड। तो जब एनर्जी तक देता है। सन रहता है, एक तो ये कि जब तक सन रहता है सनफ्लावर खिलता है, दूसरी चीज जहां भी सन खिलता है सनफ्लावर अपने आप को इस तरीके से टर्न कर लेता है कि इट इज ऑलवेज फेसिंग द सन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये इंडिकेट होता है अगर आप खुद सन हैं तो आपके आसपास लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे, आपकी स्टारडम मिलने वाली है, या आपके एडमायरर्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, या आपकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे मल्टीप्लाई करने वाली है। यू विल गेट लॉट ऑफ लाइक्स टुडे, ओके। तो एक तो ये इंडिकेट करता है, दूसरा वो ये भी इंडिकेट कर सकता है कि अगर आप सनफ्लावर हो, you need to turn towards somebody who is having more leadership qualities than you. उससे आप बहुत कुछ लर्न करोगे या उसके साथ रहोगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी। और ये वाला जो कार्ड है ये फैमिली में फंक्शंस, मैरिज के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है, मैरिज के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा कार्ड होता है।